Okay, so we can start now. In this lecture, we will discuss about the micro operations. And micro operation, as they are related with the design of control unit. So first, let's talk about the micro operations, what they are. Then I will describe, or we all will discuss about the design of the control unit. So about the micro operations, read out these few points first. As we know, in digital computers, we have combinational and sequential circuits, which are used to create the simple digital systems. So basically, combinational and sequential circuits, they are the building blocks of the digital computer. They are used inside the CPU for designing any of the component inside the CPU. So in the digital computer, what we have actually we have the registers and the operations performed on these registers. That means the operations performed on the data inside the register, as well as the information is transferred or passed from one register to another register. So from this fact, now we will come to the point of micro operations. So what the micro operation basically tells, it is basically the operation performed when the instructions are being executed and the registers, that means the data or information stored in one or more registers during one CPU clock cycle during the instruction execution. मतलब कि जब हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उस बीच जो रजिस्टर्स का ऑपरेशंस है, the data movement between the registers and the related operations as to the registers, whatever operations are related with the registers. So these small operations involved are called as the micro operations. So whenever the information is transferred or manipulated between the registers, a register may be replaced with the new value, or okay, so let's continue with the micro operations. I am seeing that if some of the participants are now being added, so it will be better. So okay, so let's start with the micro operations. तो बेसिकली माइक्रो ऑपरेशन क्या है हमारा, कि जो बेसिक ऑपरेशन है जो कि हमारे परफॉर्म होते हैं रजिस्टर के अंदर स्टोर डेटा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और के बीच डेटा का आदान प्रदान हो रहा है या डेटा इनसाइड द रजिस्टर मैनिपुलेट हो रहा है, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेटेड रजिस्टर ऑपरेशंस, रजिस्टर के ऑपरेशंस, डेटा मैनिपुलेशन, मूवमेंट, एग्जीक्यूशन के लिए जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द माइक्रो ऑपरेशंस। तो बेसिकली माइक्रो ऑपरेशन
का रिजल्ट क्या है, दैट मीन्स कि वो रजिस्टर पर क्या करते हैं कि एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो कोई जिस रजिस्टर से रिलेटेड माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस रजिस्टर के कंटेंट्स या तो रिप्लेस हो जाएंगे या फिर कुछ कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे, कुछ जो के त्यों बने रहेंगे या फिर उस रजिस्टर के कंटेंट्स दूसरे रजिस्टर में कॉपी या ट्रांसफर हो जाएंगे। तो माइक्रो ऑपरेशन के एग्जाम्पल एक्चुअली दे आर नथिंग न्यू टू यू। जो एक सीपीयू क्लॉक में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इनसाइड द रजिस्टर और रिलेटेड विद द रजिस्टर, मतलब जो डेटा रजिस्टर के डेटा पर परफॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड एज द माइक्रो ऑपरेशंस। तो माइक्रो ऑपरेशंस जो हैं उनके एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं शिफ्टिंग, काउंटिंग, लोड, क्लियर। दैट मीन्स जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं रजिस्टर के इंस्ट्रक्शंस में कि शिफ्ट ऑपरेशंस, काउंट, लोड, एक्चुअली नेट तो आई एम शेयरिंग द स्लाइड अगेन। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं बेसिकली जो हमारा माइक्रो ऑपरेशन है दैट इज ए फंक्शन डिफाइंड इन दिस वे, दैट मीन्स आर रिफर्ड फॉर सम रजिस्टर। तो दिस इज ए फंक्शन और मैपिंग which involves R to R and whose output or result will be again the manipulation inside the register. So function जो है that can be the shift, load, clear, increment, add, subtract, complement and or XOR। ये सारे operations जो भी रजिस्टर में परफॉर्म हो सकते हैं जिनके लिए स्पेशल रजिस्टर्स भी होते हैं, जैसे फॉर शिफ्टिंग ऑपरेशन शिफ्ट रजिस्टर इज देयर। Load will be performed from the data from memory into some of the register. Clearing register, incrementing the value, adding, subtracting, complement, etc. These are the examples of micro operations. The operations performed inside the register. Actually, okay. Now come to the execution of an instruction. So execution of instruction you have studied already. हम जानते हैं कि प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। और इंस्ट्रक्शन साइकिल भी हम पढ़ चुके हैं व्हिच इंक्लूड्स द डिफरेंट फेजेस फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो एक्चुअली बार बार डिस्टर्ब कर रहा है नेटवर्क, इट इज वेरी लो राइट नाउ। तो एनी हाउ बट वी आर मैनेजिंग फॉर दिस। तो यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के फेजेस हैं वो है फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूट। हाँ, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना। तो ये 3 फेज होते हैं मेनली हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के, और जिसमें फैच फेज में हमने देखा इंस्ट्रक्शन फैच, डेटा फैच। तो दैट मीन्स जो फैच फेज है दैट में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर फैच साइकिल्स। हो सकता है केवल इंस्ट्रक्शन फैच हो, ये भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद डेटा फैच हो। अब डेटा फैच में 1, 2, 3 कितने भी ऑपरेंड हमारे फैच हो सकते हैं फॉर द ऑपरेशन। जनरली 2 ऑपरेंड्स आर फैच्ड फॉर सम ऑपरेशन। तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए जो सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शन साइकिल का वो जरूरी नहीं सेम हो, क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रक्शन में अलग अलग एग्जीक्यूशन साइकिल के फेजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। फैच फेज में किसी इंस्ट्रक्शन के लिए
एक बार फैच हो सकता है, किसी में 2 बार हो सकता है। तो दैट मीन्स कि एवरी इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन सेपरेट सीक्वेंस ऑफ फेजेस। अब जो हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल है, तो उसमें तो जैसे हम जानते हैं डिफरेंट फेजेस आर देयर, और हर एक जो फेज है वो डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस के साथ कनेक्टेड है, यानी हर एक फेज के अपने माइक्रो ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं। हर एक फेज जो परफॉर्म हो रहा है वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस में परफॉर्म हो रहा है। तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस है। जैसे लेटर वी विल डिस्कस कि जैसे फैच फेज है, तो फैच फेज में डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल फैच फेज में क्या होता है कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से जो एड्रेस है वो एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे आएगा, तो दिस इज वन ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। अब ये एड्रेस डेटा बस पर प्लेस होगा रजिस्टर से, डेटा बस से मेमोरी इंटरेक्ट होगी, सॉरी डेटा बस से ये जाएगा हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर में। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, इस पे मेरे में तो शेयर हो रही है एक्चुअली, सभी के में नहीं हो रही। यस सर, अब हो गई है, अब हो गई सर। ओके ओके ठीक है, अब शेयर हो रही है सर। हाँ ओके ठीक ठीक, ओके गुड। तो ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं कि मेमोरी इंटरेक्शन, मेमोरी से फिर जो वापस कंटेंट्स आएगा वो मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगा, तो ये जो एक एक ऑपरेशन है दैट इज ए वन ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। तो एवरी इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेजेस, और हर एक फेज में अपने सर्टेन नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। तो जो इस तरह की ये माइक्रो ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो माइक्रो ऑपरेशंस को अगर हम कंबाइन करें किसी फेज के करेस्पॉन्डिंग या किसी स्मॉल टास्क के करेस्पॉन्डिंग, तो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस रिलेटेड टू सर्टेन टास्क, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रो इंस्ट्रक्शन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे हमारा एक इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन में तो बहुत कुछ है कि ऑपकोड है, ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स के एड्रेसेस हैं। अब ये सारा ऑपरेशन डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस में परफॉर्म होगा, तो माइक्रो ऑपरेशंस को हम एक सर्टेन ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं, या उनको हम बोल सकते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को रीड आउट कर लो, इसमें मैंने समझा दिया है। तो आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम बात करें सीपीयू रिलेटेड और माइक्रो ऑपरेशन रिलेटेड और इंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो कंप्यूटर इज डिफाइंड और कैरेक्टराइज्ड बाय दीज मेन 4 पॉइंट्स। पहला तो है set of instructions that the computer uses. दूसरा है set of registers and their functions. तीसरा set of allowable micro operations. Third है timing and control structure. So fourth, so organization of a computer is defined or characterized by these 4 points. माइक्रो ऑपरेशन तो मैंने शायद ये वाला बता दिया है। तो जो भी ऑपकोड है उसके लिए कंट्रोल यूनिट हमारा क्या है, इस सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है टू स्टार्ट द माइक्रो ऑपरेशंस इन द रजिस्टर। मीनिंग ये है कि ऑपकोड दैट मीन्स के व्हाट ऑपरेशन नीड टू बी परफॉर्म, तो उस ऑपकोड के करेस्पॉन्डिंग कंट्रोल यूनिट हमारा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है
Because of control signal means providing the signals, electronic signals, providing the value, voltage, electronic pulse to initiate the particular operation. जब control pulse आएगी, energy आएगी, energize होगा सर्किट, तभी तो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. अगर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कंटेंट्स ट्रांसफर होने हैं, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन, तो वो तो तभी होगा ना जब कंट्रोल सिग्नल, वो कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दैट विल बी जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट. तो ये जो सीक्वेंस है माइक्रो ऑपरेशंस की, ये हमारा हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है करस्पॉन्डिंग टू द स्पेसिफाइड ऑपकोड डिनोटेड बाय द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन में जो ऑपकोड डिनोट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है, तो उसको परफॉर्म करते हैं हमारे सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑपकोड को हम कभी कभी माइक्रो ऑपरेशन भी बोल देते हैं. क्योंकि ये हमारा सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को, एक्चुअली माइक्रो ऑपरेशन नहीं, सॉरी, मैक्रो ऑपरेशन बोलते हैं. ऑपकोड को कभी कभी हम मैक्रो ऑपरेशन भी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये हमारा सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, सो रीड आउट दीज पॉइंट, 4 पॉइंट्स, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि जो हमारे एक क्लॉक साइकिल में है, एक या एक से ज्यादा माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. एक सिंगल क्लॉक साइकिल में वन और मोर माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस की. तो मेनली वी हैव 4 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन: register, transfer, arithmetic, logic and shift. Register, transfer, micro operation, arithmetic, logic and shift. इन 4 कैटेगरी में डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं. तो पहला है रजिस्टर ट्रांसफर. एक्चुअली जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो ऑपरेशन रिलेटेड विद द अरिथमेटिक, लॉजिक एंड शिफ्ट, ऑल दीज थिंग्स you know already actually. As we have already discussed the instruction types, but in connection with the micro operation we can describe them and we can relate them whatever you have studied earlier. So read out this slide. Register transfer micro operation, as the name says, related with the transfer of contents from one register to another register. Transfer means copying the contents of one register to another register. And this is denoted as R2, arrow R1, arrow towards R2 says contents from R1 is copied to register R2. और इस केस में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रजिस्टर R1 की सारी बिट्स, that means simultaneous transfer of all the bits from R1 to the register R2 in a single clock pulse, single clock cycle will be performed. So these points are self-explanatory related with the register transfer. Parallel load in the sense जो मैंने बताया कि all the bits simultaneously, this is parallel load. And to perform the operation, control lines or control signals will be needed. तो दूसरा आते हैं arithmetic micro operations. तो as the name says, these micro operations are related with the arithmetic operations, which are addition, subtraction, increment, decrement, multiplication, division. Whatever arithmetic operations can be performed. Okay, so these 4 micro operations are related with
थर्ड जो इसमें एडिशनल अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस जो है हमारे, वो है ऐड विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। अगर एडिशन करोगे तो कैरी आएगा या नहीं आएगा, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोरो मे बी देयर और मे नॉट बी देयर। ट्रांसफर, लोड, etc. These can be the different additional arithmetic micro operations. Third is logic micro operations. So as the name says, logic micro operations are related with the logical operations. So these are performed on the bits on the registers. So अगर हम दो ऑपरेंड्स की बात करें, लॉजिकल जैसे ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल एंड की बात करें तो उनके लिए दो ऑपरेंड्स चाहिए, लॉजिकल और में दो ऑपरेंड्स चाहिए, बट लॉजिकल नॉट में ओनली सिंगल ऑपरेंड इज नीडेड, द कंटेंट्स फ्रॉम विद इन ए सिंगल रजिस्टर। तो ये लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या करते हैं हमारे, दे परफॉर्म द bit manipulation among the registers. XOR operation हो गया, NOR हो गया, NAND हो गया. So they are basically the bitwise operations. They perform on the corresponding bits. इनका यूज क्या है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन टाइप्स में देखा था, we have seen in instruction type कि सम ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, जैसे कॉम्प्लीमेंट करना है, मास्क करना है, निगेट करना है, या फिल्टर करना है, तो फॉर दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी यूज द लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस। अब इनका अगर हम एग्जांपल देखें तो बेसिकली जो हमारे लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस हैं वो 16 होते हैं टोटल, बट जो मेनली यूज होते हैं वो ये चार हैं, एंड, और, एक्सओआर एंड कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस नॉट, नेगेट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल मतलब एक्सओआर एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट कैन बी वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। So mainly we have these four. We have a complete list of the 16 different logical micro operations. So here they are. Here is their corresponding Boolean function and corresponding micro operation. Here A and B, this is denoted by the cap A cap B, the AND operation. A cap B bar, B and B bar. B bar means complement of B. A bar means complement of A. So here is the transfer of A, transfer B, exclusive OR. This plus symbol inside the circle, this is for XOR operation, exclusive OR, which we have studied actually earlier. This is exclusive NOR. अगर बार लगा है यहाँ, जैसे ये NOR है, और का अपोजिट NOR है, एंड का अपोजिट NAND है, इसी तरह XOR का अपोजिट एक्सक्लूसिव NOR है। किसी भी ऑपरेशन का डेटा का बार कर दें तो कॉम्प्लीमेंट B, कॉम्प्लीमेंट A, एंड का अपोजिट NAND। तो these are the (16) different logical micro operations, but mainly, as I told you, mainly 4 are used. So now we can ये इनका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है इन 4 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का। इसमें क्या है कि ये यहाँ पॉइंट लिखे हैं, बट दिस नॉट विजिबल, सो लेट मी increase the font size. Okay, so this is the multiplexer. 4:1 multiplexer is there. 4:1 multiplexer. This here is the text written.
select signals are there. So we have two select signals, as you have studied all these things in digital electronics. So you know the select signals, input signals, output signals, multiplexers, and symbols associated with the so actually here we have AI and BI, two input. This is the AND gate, this is OR gate, this is NOR, and this is the complement. That means whatever bit is arriving at this end, it is inverted, opposite bit इसमें होके आएगी. तो ये यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये शो हो रहा है. ठीक है, तो आई एम नॉट एक्चुअली, ये S1, S2, S1, S0 दो सिलेक्ट इनपुट हैं. तो मैंने एक्चुअली इसमें वैल्यू दी थी, बट छोटा छोटा आ रहा है. तो ठीक है, बट समझ गए होगे तुम लोग. आगे चलते हैं. अब एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस. तो जैसे कि मैंने अभी बताया, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन का जो यूज है वो है मैनिपुलेशन ऑफ द बिट्स और पोर्शन ऑफ द पार्ट ऑफ ए वर्ड इन ए रजिस्टर. मतलब एक रजिस्टर में जो कंटेंट्स हैं, उस कंटेंट्स के बिट पैटर्न की कंप्लीट बिट पैटर्न या पार्ट ऑफ दैट, उसके लिए हम मैनिपुलेशन के लिए इनको वर्क में लेते हैं, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस को. तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये एक्चुअली इसमें नया कुछ नहीं है. जो हमने इंस्ट्रक्शंस जब डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने जो पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस में कि टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस, तो बेसिकली इट डिनोट्स द सेम थिंग, और इसमें नया कुछ नहीं. तो सिलेक्टिव सेट, ठीक है, ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं. मैं इनको एक उसमें लाइन में कर देता हूं, तो ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा. सिलेक्टिव सेट के लिए हम A प्लस बी यूज करते हैं. प्लस बी किसके लिए, प्लस किसके लिए यूज होता है, और के लिए. ओके, A प्लस बी इनसाइड सर्कल, दिस इज फॉर XOR, दिस इज फॉर सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. अभी हम देखेंगे कि कैसे इसमें ये कॉम्प्लीमेंट होता है या कैसे क्या होता है. हम सारे ऑपरेशंस को अभी देख लेंगे. पहले थोड़ा अरेंज करते हैं इनको. दूसरा है सिलेक्टिव क्लियर, A डॉट B बार. डॉट मीन्स यहाँ पर एंड के लिए यूज हो रहा है. अगर A एंड B करना है, A डॉट B, B बार किया हुआ है, मतलब कि A एंड B का कॉम्प्लीमेंट. मास्क ऑपरेशन, क्लियर ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन. इन ऑपरेशंस को अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. तो कंपेयर को, तो अब हम बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं. यहाँ पे सिलेक्टिव सेट. तो सिलेक्टिव, अब जैसे ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1100, दिस इज वैल्यू फॉर ऑपरेंड A, या ये कह सकते हैं कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर A एंड कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B एट टाइम T. और टाइम T+1 पर क्या होगा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा A प्लस B. दैट मीन्स प्लस मीन्स और ऑपरेशन A इक्वल्स टू A प्लस B. A प्लस B ऑपरेशन परफॉर्म होके A में वापस स्टोर हो रहा है. तो यहाँ पे हम इसको, ये रिजल्ट, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, जिससे तुम लोगों को ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, इस तरह कुछ. This is like this. तो सिंपल और ऑपरेशन है. तो ये जो ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे इंस्ट्रक्शन टाइप्स में, कि और ऑपरेशन में क्या होता है, एंड में क्या है, XOR में क्या है,
This is actually related to the same thing. You can refer to that video lecture जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया था कि हमारा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का ये अलग अलग बिट करके हमने देखा था कि ए और बी अगर बिट क्या होंगी तो क्या ऑपरेशन होगा और क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मास्किंग होगी कि क्लियर होगा कि सेट होगा कि कॉम्प्लीमेंट होगा. सो वी कैन सी दैट. तो अंडरस्टैंड. Similarly, we have the selective complement. So here, selective complement यहाँ पे इसके लिए जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट विल बी द XOR ऑपरेशन. XOR क्या करता है कि ये दोनों ऑपरेंड्स हैं. AT मींस के वैल्यू ऑफ A एट टाइम t और AT+1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है उसको A में ही स्टोर कर रहे हैं. तो इसको ऐसे मैं एक ये लाइन खींच देता हूं सो दैट इट विल लुक लाइक द रिजल्टेंट वैल्यू. A और B परफॉर्म हो रहे हैं. ये इसको सबस्क्रिप्ट में ले लें तो इट विल बी बेटर. अब ये देखते हैं इसमें सबस्क्रिप्ट. ठीक है, सबस्क्रिप्ट मुझे नहीं दिख रहा. सो एनीवे वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एट टाइम t द वैल्यू इनसाइड A रजिस्टर A और ऑपरेंड रिलेटेड टू दैट इज दिस. B की वैल्यू ये है और XOR किया तो t+1 पर ये रिजल्ट आया और ये A में ही स्टोर कर ले रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि मींस हमने जो बिट सिलेक्ट की है उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो XOR ऑपरेशन को तो जानते ही हो कि अगर सेम बिट होगी तो 0 आएगा रिजल्ट और अगर डिफरेंट बिट्स होगी तो रिजल्ट विल बी 1. तो अगर B में कोई बिट 1 है तो इस ऑपरेशन के बाद A में उस जगह कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. मीनिंग ये है कि अगर B की बिट 1 है तो A की जो बिट है उस बिट पर A में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. मीनिंग ये है कि आई थिंक समझ रहे होगे तुम कि ये A की कुछ बिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो A की जिस बिट को हमें कॉम्प्लीमेंट करना है उस बिट को B के साथ 1 ऑपरेशन, B के साथ XOR ऑपरेशन कर देंगे और B के साथ बिट 1 ले लेंगे. जैसे यहाँ 1 है बिट B तो A की बिट ये कॉम्प्लीमेंट होके आएगी. इसी तरह यहाँ 1 है B में तो A की जो ये बिट है वो कॉम्प्लीमेंट होके आ रही है. दिस इज सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. तीसरा है सिलेक्टिव क्लियर. तो इसको भी वैसे ही हम समझते हैं सिलेक्टिव क्लियर. तो यहाँ पे हमने क्या किया? एंड ऑपरेशन विद B बार. So again the bit pattern in B is used to clear the bits in A. तो इसमें क्या है कि B में जहां जहां बिट 1 है B में जहां जहां 1 आएगी बिट, अगर हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस रिजल्टेंट में A की वो बिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. जैसे ये हम जो कर रहे हैं इसका वो है B बार के साथ एंड कर रहे हैं. B बार यानी कॉम्प्लीमेंट के साथ. ओके, तो ये सिलेक्टिव क्लियर हो गया. आगे हम चलते हैं मास्क ऑपरेशन. तो
इसको मैं ये सारे ऑपरेशन वही हैं जो हमने उसमें स्टडी करे हैं इंस्ट्रक्शन टाइप्स में, और नया कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है कि जो ये हम कर रहे हैं ए और बी, ए और बी, तो ए और बी का सेम ऑपरेशन, ए और बी का ऑपरेशन तो हम जानते ही, जब दोनों बिट 1 होंगी, ए एंड बी, सॉरी डॉट है ना, ए एंड बी कर रहे हैं, तो दोनों बिट 1 होंगी तभी रिजल्टेंट 1 आएगा। तो रिजल्टेंट ये स्टोर होना है ए में, जो प्रीवियस कंटेंट्स ए थे। तो एंड ऑपरेशन के बाद अगर हम रिजल्टेंट t+1 टाइम पर देखें नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पर, तो ए के कंटेंट्स इस तरह होंगे, और जो कि इस तरह हैं हमारे कि जहां पर बी में बिट 0 है तो ए के करस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन पर 0 ऑब्टेन होगा। ये मास्क ऑपरेशन है हमारा, कि मास्किंग सम ऑफ द बिट्स। जैसे यहाँ 0 है तो रिजल्टेंट में 0 होगा, यहाँ 0 है तो ये 0 होगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्लियर ऑपरेशन। तो क्लियर ऑपरेशन के लिए फिर XOR ऑपरेशन कर रहे हैं और उसको ए में ही स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारे ऑपरेशन है मास्क, क्लियर, सेट, ये हम उसमें इंस्ट्रक्शन टाइप्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड यू कैन स्टडी ऑल दीज थिंग्स। फिर नेक्स्ट है इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्टिंग सम ऑफ द बिट्स एट सम पर्टिकुलर पोजीशन। तो इसमें क्या है इंसर्ट ऑपरेशन में कि कुछ पोजीशन पर हमें एक पर्टिकुलर बिट्स इंसर्ट करनी होती है, बाकी बिट्स को एज इट इज रहने देते हैं। तो अब ये एग्जाम्पल तो वैसे देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द माइक्रो ऑपरेशन लेक्चर फॉर माइक्रो ऑपरेशन। शिफ्ट और रह गया, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। तो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन में एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए कोई नया कुछ नहीं है, जो हमने शिफ्ट ऑपरेशंस डिस्कस किए थे दैट विल बी ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप के शिफ्ट ऑपरेशन थे, लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन, सर्कुलर शिफ्ट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट। तो लॉजिकल तीनों में हमारे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट थे। सर्कुलर शिफ्ट में तो जो कहते हो हम जो बिट पैटर्न है उसी को लेफ्ट से लेके राइट में एडजस्ट कर देते हैं। लॉजिकल में क्या था कि हमारा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में कि राइट से या लेफ्ट से बिट रिमूव करके और हम उसको लेफ्ट या राइट में 0 ऐड करते थे, ऐड 0 ही करते थे, बिट्स चाहे हमारी जो भी हो। तो इस तरह ये हमारे शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए। और इसमें क्या है कि 2-4 स्लाइड्स और बची हैं, 5 मिनट 4 मिनट का टाइम है, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपकोड्स। तो ये तुम जानते ही हो कि ऑपकोड का इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। कि ऑपकोड इंटरप्रेट हो जाता है यानी डिकोड हो जाता है बाय द कंट्रोल यूनिट, तो इट generates the sequence of control signals for the particular operation denoted by the opcode. Control unit issues the sequence of micro operations or basically issues the control signals to perform the micro operations. Next. Control unit की responsibilities we have studied earlier. पहला ये सुपरवाइज करता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रजिस्टर टू एलयू, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
data movement among the registers. So control unit की operations we have studied already. Bus organized system, the concept of bus, role of bus, also we have seen. Micro instruction, micro program मैंने बताया है अभी कि micro instruction means combination of micro programs. Some of the micro programs are combined together as a micro instruction. Or better we can say कि अगर हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स a lot of माइक्रो ऑपरेशंस. तो ये जो हमारा माइक्रो ऑपरेशंस, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर इस तरह के प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, तो ये हमारा माइक्रो प्रोग्राम की तरह है. माइक्रो प्रोग्राम में क्या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो हमारी स्पेसिफाई कर रहे हैं डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस. हाँ, अब हम कंट्रोल मेमोरी की बात करेंगे, तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 1-1.5 मिनट बचा हुआ है. वी विल कम टू द कंट्रोल मेमोरी. ओके, देन वी विल स्विच टू द डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट. ओके, तो इसको हम फिनिश करते हैं. ओके.